as criminals. They can't be detected, they can't be arrested कि they have done these tasks. Now, some of the methods are given here. Distributed DOS attacks, that is DDoS. यहाँ पर क्या कह रहा है? Are often used to shut down systems and networks. This type of attack uses a network's own communication protocol against it by overwhelming its ability to respond to connection request. तो यहाँ पर क्या होता है, आपका ये जो DDoS मेथड है, that is distributed DOS अटैक, इसमें क्या करता है, जो भी प्रोटोकॉल आपका नेटवर्क यूज कर रहा है, आपका सिस्टम जो भी प्रोटोकॉल यूज कर रहा है फॉर द कम्युनिकेशन, उस प्रोटोकॉल में चेंजेस करके उसी प्रोटोकॉल के थ्रू आपके पूरे के पूरे सिस्टम को शट डाउन कर देता है, पूरे के पूरे नेटवर्क को शट डाउन कर देता है, एंड देन it starts working while when you are trying to again turn on your device, turn on your network, at that time they do their crime. DOS attacks are sometimes carried out simply for malicious reasons or as a part of cyber extortion scheme, but they may also be used to distract the victim organization from some other attack or exploit carried out at the same time. तो यहाँ पर जो आपका DDoS है, that is mainly used for cyber extortion scheme, means आपकी डेटा उन्होंने क्या किया, डेटा थेफ्ट किया, एंड देन दे आर आस्किंग फॉर द मनी from the owner of that particular organization, or for some time they want to do any other particular crime with that particular organization, so they are just deviating the attention of the network administrator or the organization owner for some time, so that side by side they can do their crime and they can't be arrested. Okay, second one is infecting systems and networks with malware is used to damage the system or harm users by for example, damaging the system software or data stored on the system. Ransomware attacks are similar, but the malware acts by encryption or shutting down victim system until a ransom is paid. तो सेकेंड मेथड जो है वो ये कह रहा है कि आपका पूरा का पूरा सिस्टम इन्फेक्ट हो जाता है बाय एनी ऑफ द मालवेयर, और इट इज टोटली शट डाउन एंड इट इज you are not able to regain your network, you are not able to regain your system until and unless you are not paying money to the hacker or to the cyber criminal. Next one is phishing. Phishing campaigns are used to infiltrate corporate networks by sending fraudulent email to users in an organization, enticing them to download attachment or click on link that then spread viruses or malware to their system and through their system to their company's network. तो यहाँ पर आपका जो फिशिंग है, फिशिंग में क्या होता है, आपको एक मेल भेजी जाती है एंड देन दैट मेल इज हैविंग सम अटैचमेंट विद इट, एंड then you are downloading that attachment, then with that attachment that malware is transferred to your system and then to your network, and your network gets affected and your information also can be theft via that network. Next one is credential attack, where the cyber criminals aim to steal or guess users' ID and password for the victim's system or personal accounts can be carried out through the use of brute force attack by installing key sniffer software or by exploiting vulnerability in software or hardware that can expose the victim's credentials.
तो सेकंड जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो ये कह रहा है कि क्रेडेंशियल अटैक्स। क्रेडेंशियल अटैक्स का मतलब होता है कि वॉट एवर personal information is there, whatever ID and password is there, that can be hacked, that can be gained for by the hacker or cyber criminals, so that they can do their working by that particular ID and password. Or other way is there, वहां पर क्या होता है आपका, they are doing, they are sending you some mail, and as soon as you are just logging in by that particular mail or downloading that particular page, आपने पेज डाउनलोड करके वहां पर लॉगिन करने की कोशिश करी, तो क्या होगा, आपका जो भी आपने आईडी एंड पासवर्ड वहां पर सेव किया है, दैट आईडी पासवर्ड विल बी कॉपीड इन देयर डेटाबेस, उनके खुद के डेटाबेस में वो आपका आईडी एंड पासवर्ड कॉपी हो जाएगा, एंड देन they also will be having the same ID and password of yours, and they can misuse that particular ID and password anywhere. Next point, cyber criminals may also attempt to hijack a website to change or delete content or to access or modify databases without authorization. For example, an attacker may use an SQL injection exploit to insert malicious code into a website, which can then be used to exploit vulnerability in the website's database, enabling a hacker to access the tamper with record and gain unauthorized access to data such as customer password, credit card number, personally identifiable information, trade secrets, intellectual property, and other sensitive information. Yes, Muskan? वल्नरेबिलिटीज का मतलब क्या होता है? Vulnerability means होता है आपका such a thing which can which is not good. Okay, मतलब ये समझ लीजिए कि जो प्रोन एरिया जिसको हम बोलते हैं ना, कि सबसे ज्यादा वहां पर प्रॉब्लम्स हो सकती है, दैट इज कॉल्ड वल्नरेबिलिटी. ओके, थैंक यू मैम. ओके बेटा. तो आपका यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि साइबर क्रिमिनल्स में ऑल्सो अटेम्प्ट टू हाईजैक अ वेबसाइट. आपकी वेबसाइट को हाईजैक कर सकते हैं सो दैट दे कैन गेट एक्सेस टू द डेटाबेस. आपका जो भी डेटाबेस वहां पर स्टोर्ड है, जहां पर इंफॉर्मेशन, उस डेटाबेस का एक्सेस उनको मिल जाएगा, एंड देन दे विल बी एबल टू get all the information whatever is stored over there. Arshad, just let me complete this topic, then I'll be just listening your problem, okay? Then, for gaining access to the database, they can make use of SQL injection software is there, और वहां से वो सारा का सारा डेटा क्या करेंगे, कॉपी कर सकते हैं, and then they can make use of data like what type of data they will be getting. That will be customer password, credit card number, personal identifiable information, means passwords and all, trade secrets, whatever tenders you are having, according for that also they can get the information. Cyber criminals often carry out their activities using malware and other type of software, but social engineering is often an important component for executing most types of cyber crime. The cyber criminals can make use of multiple softwares and malwares, as well as they do their crime by social engineering. Phishing email is an important component to many types of cyber crimes, but especially so for targeted attacks.
like business email compromise, in which the attacker attempts to impersonate via email a business owner in order to convince employees to pay out bogus invoices. तो यहाँ पर आपकी फिशिंग मेल्स जो हैं वो क्या करती हैं, आपकी फिशिंग ईमेल्स आर आल्सो अ कंपोनेंट ऑफ important component of cyber crime, but business email compromises are also an important part of your are an important component of cyber attack, by which employees are targeted and they are getting some convincing mails that you have to pay this, you have to do this, you have to fill this form so that you can get this particular offer and all. तो इस तरीके से आपकी इंफॉर्मेशंस कन्विंसिंग मेल्स भेजी जाती हैं टू द एम्प्लॉइज. ओके, क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. ओके, यस हर्षित अग्रवाल, अनम्यूट योरसेल्फ. मैम क्रेडेंशियल मीनिंग क्या है? क्रेडेंशियल्स मतलब होता है आपकी इंफॉर्मेशन, मतलब जिसे हम आईडी एंड पासवर्ड्स बोलते हैं ना, जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन बाय विच वी आर आइडेंटिफाइड ओवर द नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड क्रेडेंशियल. मैम क्रेडेंशियल अटैक. क्रेडेंशियल अटैक कहाँ पर है बेटा? मैम फिशिंग का सेकंड पॉइंट. क्रेडेंशियल अटैक, हाँ ठीक है बेटा. क्रेडेंशियल अटैक्स जो हैं आपके, दैट इज डन फॉर getting the ID and password via any malware software or by key sniffer software. When key sniffer software is installed on your system, then whatever keys you are pressing, whatever work, typing work and all you are doing, that will be recorded onto the attacker's system. ठीक है? एक्सप्लॉइटिंग होगा आपने जो भी आईडी एंड पासवर्ड्स वगैरह डाले, होता है आपका कि हैरेस करना, हार्म करना. ओके, समझ में आया बेटा हर्षित? ब्रूट फोर्स. मैम यूज ऑफ ब्रूट फोर्स. यूज ऑफ ब्रूट फोर्स अटैक का मतलब होता है यहाँ पर कि आपको पता भी नहीं है. ब्रूट फोर्स का मतलब यहाँ पर है अननोइंगली. की स्निफर सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, आपको नहीं पता कि आप तो ये समझ रहे हो कि मैंने अपने सिस्टम पे अपनी आईडी एंड पासवर्ड डाली, कहीं और तो हमने डाली नहीं, तो हैक कैसे हो सकती है. लेकिन क्या है, आपके सिस्टम पर अननोइंगली की स्निफर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है and you are doing your work, that is known as brute force. ईमेल के द्वारा जो हम ईमेल के थ्रू हो जाता है कभी कभी. ईमेल के थ्रू नहीं, ईमेल के थ्रू इज नोन एज फिशिंग. फिशिंग का ही तो पॉइंट है ना. हाँ, ईमेल के थ्रू आपका फिशिंग हुआ, लेकिन यहाँ पर फिशिंग आपकी आईडी एंड पासवर्ड उसके डेटाबेस में जाकर के सेव हो रही है. ठीक है, यहाँ पर जो भी फाइल्स आप बना रहे हो, जो भी आप वर्किंग कर रहे हो, दैट विल बी सेव्ड इन अनदर फाइल which is attached to that key sniffer software. ठीक है, टेक्स्ट फाइल बनेगी की स्निफर सॉफ्टवेयर की से अटैच्ड, और वहां पर सारी इंफॉर्मेशन आपकी सेव होगी. दिस इज डिफरेंस बिटवीन फिशिंग एंड क्रेडेंशियल अटैक यूजिंग की स्निफर सॉफ्टवेयर. ठीक है बेटा? एंड मैम टू पे आउट बोगस इनवॉइसेस. मैम लास्ट पैराग्राफ का लास्ट. To pay out bogus invoices means उन्हें convincing mails भेजी जाती हैं, send की जाती हैं, so that they get convinced. and वहां पे मतलब एक तरीके से क्या बोलते हैं ना, उसको लालच देना जिसको हम बोलते हैं ना, और इसमें कुछ भी नहीं होता. these are all fake mails. और उसके साथ क्या होता है, वो अपने इंफॉर्मेशन फिल करते हैं, कंपनी की डिटेल्स एंड ऑल फिल करते हैं, एंड देन द डिटेल ऑफ द कंपनी इज गेट हैक्ड by the hacker. Okay, Arshit, fine beta? Yes ma'am. Okay, yes मुस्कान बेटा बोलिए. क्या होता है? हाँ बेटा. मैम मालवेयर क्या होता है?
malware is a kind of virus, malicious software जो कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल होने के बाद आपके सिस्टम को हार्म करना शुरू करते हैं एज पर द हैकर्स इंस्ट्रक्शन। हैकर ने जिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से उस मालवेयर को सेंड किया है आपके सिस्टम पर, उसी पर्टिकुलर वर्किंग को वो आपके सिस्टम पर एग्जीक्यूट कराते हैं। यस मैम। ओके, यस मैम, थैंक यू। चलिए, वेयर डज साइबर क्राइम कम फ्रॉम? साइबर क्राइम आपका कब शुरू हुआ, कहां से आया? तो यहाँ पर क्या कह रहा है, साइबर क्राइम कैन बिगिन वेयर एवर देयर इज डिजिटल डेटा अपॉर्चुनिटी एंड motive. Cyber criminals include everyone from the lone user engaged in cyberbullying to state-sponsored actors like China's intelligence service. Cyber crimes generally do not occur in a vacuum. They are in many ways distributed in nature. There is cyber criminals typically rely on other actors to complete the crime, whether it's a creator of malware using the dark web to sell code, the distributor of illegal pharmaceuticals using cryptocurrency brokers to hold virtual money in escrow, or state threat actors relying on technology subcontractors to steal intellectual प्रॉपर्टी। तो आपका साइबर क्राइम आता कहां से है, होता कैसे, क्या होता है ये हमने समझ लिया, किस किस तरीके से होता है ये हमने समझ लिया। अगला है कि क्यों होता है, कहाँ होता है। तो ये भी आपको पता है कि साइबर स्पेस में होता है। यस हर्षद बेटा। मैम साइबर क्राइम बनाया किसने था? किसी ने तो उसको सॉफ्टवेयर डेवलप करा होगा। साइबर क्राइम ने बनाया किसी ने नहीं था। whenever you are just trying to get someone else data over the internet for a malicious working, for an illegal working, that can be called as cyber crime. Okay, और मैम जो इवन अगर हम किसी का आईडी और पासवर्ड यूज कर रहे हैं और वो पर्सन हमसे शेयर कर रहा है, देन इट इज ऑल्सो अ कैटेगरी ऑफ साइबर क्राइम। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी किसी से भी अपनी आईडी एंड पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहिए। हाँ, नाउ आस्क योर क्वेरी, व्हाट यू आर सेइंग। मैम जो विलियम जिप्सन थे, इन्होंने साइबर स्पेस बनाया था, मतलब फाउंड करा था। साइबर स्पेस बनाया नहीं था, साइबर स्पेस वर्ड ही हैज यूज्ड इन हिज नॉवेल, 2 नॉवेल्स, जिसमें उन्होंने पहली नॉवेल थी उनकी 1982 में बर्निंग क्रोन, उसके बाद 1984 में उन्होंने अपनी नॉवेल यूज करी थी न्यूरोमैंसर, जिसमें उन्होंने साइबर स्पेस वर्ड का यूज किया था। दैट इज व्हाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ साइबर स्पेस। ओके, बनाया किसने था बेटा? साइबर स्पेस इज एन इंटरनेट। इंटरनेट आपका किसने फॉर्म किया था? एर्पानेट एक सोसाइटी थी जिसने फॉर्म किया था। तो इंटरनेट इज योर साइबर स्पेस। तो साइबर स्पेस किसी ने नहीं बनाया, साइबर स्पेस वर्ड हैज बीन यूज्ड फॉर इंटरनेट। ओके, ओके, चलिए। तो साइबर क्राइम आपका ये कह रहा है कि साइबर क्राइम कहीं पर भी हो सकता है इन द साइबर स्पेस, wherever digital data is there and opportunity means there is some lacking behind the technology or some problem there, problem while creating the network, means some loopholes are there, then there is possibility of cyber crime. And मोटिव का मतलब होता है कि एम है उनका टू हार्म द पर्सन, वहां पर आपका साइबर क्राइम हो सकता है। मींस साइबर क्राइम कैन बी डन इन एनी ऑफ द डिजिटल एनवायरनमेंट जहां पर सम लूपहोल्स आर देयर, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स है, कुछ ड्रॉबैक्स कह रही, कुछ ना कुछ आपकी लूपहोल्स का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ कमियां छोड़ी हुई हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो उन लूप होल्स की वजह से आपकी और लूप होल्स जहाँ पे है साथ में
किसी ना किसी पर्सन की इंटरेस्ट है आपको हार्म करने के लिए, वहां पर आपका साइबर क्राइम हो सकता है. Cyber criminals include everyone from the lone user engaged in cyberbullying to state-sponsored actors. मीन्स जो साइबर क्राइम है, साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो किसी को भी अटैक कर सकते हैं, चाहे वो आपका सिंगल यूजर हो, मीन्स अलोन यूजर हो, इंडिविजुअल यूजर हो, या फिर आपके मल्टीपल यूजर्स हो, ऑर्गेनाइजेशंस हो, या स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स का मतलब जो भी आपकी चाहे गवर्नमेंट रेगुलेटेड सोसाइटी हो या नॉर्मल आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ वगैरह हो, वो किसी को भी अपना विक्टिम बना सकते हैं. ओके. साइबर क्राइम्स जनरली डू नॉट अकर इन वैक्यूम. डू नॉट अकर इन वैक्यूम का मतलब होता है आपका कि कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि क्लोज एरिया है जहां पर आपका साइबर क्राइम हो रहा है. साइबर क्राइम कैन बी एनीवेयर. That is, cyber criminals typically rely on other actors to complete the crime, whether it is creator of malware using the dark web to sell code. आपके जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, साइबर क्रिमिनल्स आर not doing the work on their own. They are just taking the help of other actors to complete their work, means by other methods, by any of the software, by any of the mail, they are doing their work so that they can't be caught as criminal. Clear at this point, everyone? यहाँ तक सारे पॉइंट समझ में आ गए बेटा आप लोगों को? यहाँ तक सारे पॉइंट समझ में आ गए बेटा आप लोगों को? यस और नो? यस मैम. ओके, चलिए आगे आते हैं. टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स. तो कौन कौन से होते हैं आपके साइबर क्राइम्स, देखते हैं. There are different types of cyber crimes. Most cyber crimes are carried out by the expectation of financial gain by the attackers. Through the way cyber criminals aim to get paid can vary. Means जो भी आपका साइबर क्राइम है, that is done for the sake of money only. और वो किस तरीके से करेंगे, आपको साइबर अटैक मतलब विक्टिम बनाएंगे, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन देम. यस हर्षद बेटा? मैम साइबर बुलिंग मतलब क्या होता है? साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग मींस जो ट्रोलिंग वर्ड हम यूज करते हैं ना, जैसे अगर मान लिया अभी हम क्लास में बैठते हैं बेटा, एक मिनट, जैसे हम क्लास में होते हैं, अब हमारा कोई फ्रेंड है, जब हम उसको छेड़ते हैं मतलब परेशान करते हैं, अब किसी भी एक टॉपिक पर ले लिया हमने, फॉर एग्जांपल कोई एक छोटा बच्चा है जिसकी हाइट कम है, तो हम लोग उसको क्लास में क्या बोलते हैं, चढ़ाते रहते हैं, उसकी हाइट के लिए चढ़ाते रहते हैं, राइट? तो वो क्या है आपका के सामने परेशान कर रहे हो, राइट? जहां पर कहलाती साइबर बुलिंग. ठीक है, समझ में आया? यस मैम. और मैम ये हर्षद? यस मैम. और ये एस्क्रो कहाँ है बेटा आपका? मैम वेयर डज साइबर क्राइम कम फ्रॉम की पैराग्राफ के लास्ट सेकंड लाइन. एस्क्रो. एस्क्रो आपका जो है बेटा एक ऑनलाइन अकाउंट है, वेयर योर वर्चुअल मनी मींस आपका जो मतलब जो पैसा है, जो मनी है, फाइनेंशियल वैल्यूज है, वो आपकी स्टोर होती है इसमें. वर्चुअल मनी मींस योर पॉइंट्स एंड ऑल जो होते हैं आपके, दैट इज कॉल्ड
जो जहां पर स्टोर होते हैं, दैट इज नोन एज एस्क्रो. ओके. हर्षित समझ में आया बेटा? यस मैम. ओके. और मैम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, टू स्टील इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है बेटा आपकी जो भी whatever personal information you are having, whatever your own working is there, जो भी आपके अपने खुद के क्रिएशंस हैं, उनको स्टील करना इज नोन एज स्टीलिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ओके. और मैम एक्सपेक्टेशन मतलब? एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है उम्मीद. मतलब सिर्फ और एक्सपेक्टेशन सिर्फ ऑफ किसी फाइनेंशियल गेन बाय द अटैकर्स. एक्सपेक्टेशन ऑफ फाइनेंशियल गेन का मतलब होता है आपका कि सिर्फ और सिर्फ पैसे आपसे लेने के लिए ही वो साइबर क्राइम करते हैं. उनका जो मेन मोटिव है, जो एम है उनका, वो है सिर्फ आपसे पैसे लेना. ठीक है. थैंक यू मैम. ओके. यस. सो आपका जो मेन मोटिव होता है साइबर क्रिमिनल्स का, दैट इज फॉर द गेनिंग मनी फ्रॉम यू. So what are the different ways by which they are getting they are doing the crime? Yes, Fahad. मैम ये जो थर्ड लाइन में लिखा है साइबर क्राइम जनरली डू नॉट अकर इन अ वैक्यूम, ये फिर से समझा दीजिए. वैक्यूम क्या है? बेटा वैक्यूम का मतलब होता है इट इज नॉट इन अ क्लोज्ड रूम ओनली. ठीक है. मीन्स कोई भी ऐसा काम नहीं होगा कि यू आर जस्ट stuck into you are just the only person who is stuck into that. आपके साथ बहुत सारे लोग भी ऐसे होते हैं who are victim of cyber crime. Okay. ओके मैम. Yes, Malia. मैम क्रिप्टो करेंसी ब्रोकर क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी ब्रोकर का मतलब होता है बेटा आपका जो भी आपकी करेंसी है. करेंसी मीन्स योर मॉनेटरी वैल्यू, दैट मीन्स योर मनी. अब यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का मतलब हुआ कि आपकी जो भी ऑनलाइन वैल्यूज है, ऑनलाइन पॉइंट्स वगैरह हैं, उनको स्टोर कराना, उनको मॉनिटर करना और उस पर्टिकुलर पॉइंट्स को मनी में कन्वर्ट करना इज नोन एज क्रिप्टो करेंसी. ठीक है. जैसे हमारे ऑनलाइन पॉइंट्स वगैरह होते हैं, हम जो भी वर्किंग करते हैं अपने एटीएम कार्ड्स वगैरह के थ्रू, जब हम शॉपिंग या किसी भी तरीके का मतलब पेमेंट वगैरह करते हैं, तो हमारे जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसके अगेंस्ट हमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं. ठीक है. उन पॉइंट्स को बाद में हमारे जो भी आपके कुछ स्टोर्स हैं जो कि उन पॉइंट्स को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू मनी, और उस पर्टिकुलर पॉइंट को फिर वो डिडक्ट कर लेते हैं फ्रॉम आवर बिल. दैट इज कॉल्ड क्रिप्टो करेंसी. समझ में आया माल्या? यस मैम. ओके. चलिए आगे आते हैं. पहले आपका साइबर एक्सटॉर्शन इज अ क्राइम involving an attack or threat of attack coupled with a demand for money to stop the attack. One form of cyber extortion is the ransomware attack, in which hacker gain access to anything of potential value, making the data inaccessible until a ransom is paid, usually in some form of cryptocurrency such as Bitcoin. तो साइबर एक्सटॉर्शन क्या है आपका? एक तरीके से आपका रैंसमवेयर का फॉर्म है. रैंसमवेयर मैंने आपको कल बताया था फिरौती वर्ड जिसको मिलता है. रैंसम मनी, दैट इज कॉल्ड फिरौती के पैसे. तो आपका रैंसमवेयर अटैक इज डन फॉर द सेक ऑफ मनी ओनली, और आपका सिस्टम जो है हैक कर लिया जाता है आपका
नेटवर्क हैक कर लिया जाता है, एंड until and unless you are not paying money in the form of bitcoin or points, till then you are not getting access to your system. आपको अपने खुद के सिस्टम को यूज करने की लिबर्टी नहीं होती. You are not able to use your own network, use your own system. समझ में आया बेटा सभी को? साइबर एक्सटॉर्शन, यस और नो? रैंसमवेयर ही होता है साइबर Yes, एक्सटॉर्शन? ओके, चलिए नेक्स्ट वन इज क्रिप्टो जैकिंग. अटैक्स use scripts to mine cryptocurrencies मैम within browsers without the user's consent. Such attacks may involve loading cryptocurrency mining software to the victim's system. However, many attacks depend on JavaScript code and does in browser mining as long as the user's browser has a tab or window open on the malicious site. No malware needs to be installed as loading the affected page executes the in-browser mining code. Yes, Malia? मैम मुझे ये बोलिए पूछना बेटा. था, जो साइबर एक्सटॉर्शन होता है वो रैंसमवेयर ही होता है? वो रैंसमवेयर हाँ, ही होता है? रैंसमवेयर का एक फॉर्म होता है बेटा. रैंसमवेयर का मतलब क्या है? जो भी हम इन रिटर्न जो भी हम मनी ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रैंसमवेयर. तो साइबर एक्सटॉर्शन में क्या होता है, आप जब तक जो है आप पेमेंट नहीं कर देते हैं तब तक आपको अपने सिस्टम का एक्सेस नहीं मिलता है. ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं किडनैपिंग वगैरह में, क्या होता है किडनैपिंग में, जब तक हम रैंसम मनी नहीं देते हैं उनको, तब तक क्या वो उन्होंने जिस पर्सन को हमारे किडनैप किया हुआ होता है वो वापस करते हैं? नहीं करते हैं, राइट? सेम हैपेंस इन साइबर एक्सटॉर्शन ओनली. सेम हैपेंस हियर आल्सो कि until and unless you are not paying money to them, you are not getting access of your own system. ठीक है? यस मैम. ओके बेटा. चलिए आगे आते हैं. तो क्रिप्टो जैकिंग क्या कह रहा है आपका? अटैक्स यूज स्क्रिप्ट्स टू माइन क्रिप्टो करेंसीज within browsers without the user's consent. तो यहाँ पर क्रिप्टो जैकिंग क्या कर रहा है? आपकी करेंसी को क्या कर रहा है? स्क्रिप्ट कर रहा है विदाउट योर नॉलेज, विदाउट योर कंसेंट. आपसे परमिशन लिए बगैर आपके जो भी पॉइंट्स हैं, आपके जो भी वैल्यूज हैं, उनको स्क्रिप्ट कर रहा है, मींस स्टोर करा रहा है कहीं. सच अटैक्स में इन्वॉल्व लोडिंग क्रिप्टो करेंसीज माइनिंग सॉफ्टवेयर टू द विक्टिम्स सिस्टम. आपके सिस्टम पर एक पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी माइनिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, एंड देन व्हाट एवर वर्किंग यू विल बी डूइंग दैट विल बी stored in the system of installer of that particular software. Many attacks depend on JavaScript code and does in browser mining as long as the user's browser or has a tab or window open on the malicious साइट. तो आपने इन्होंने जिस पर्टिकुलर साइट पर, जिस पर्टिकुलर साइट के लिए आपका मैलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा, until and unless you are not closing every window of or every tab of your browser, till then whatever working you are doing, that will be stored or recorded over there. Okay,